کیا ہم کسی مرے ہوئے انسان کو موت کے بعد دوبارہ سے زندہ کر سکتے ہیں؟ اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے ارلی 1900s میں کتوں پر کچھ ایسے ایکسپیریمنٹس کیے گئے تھے جو کسی بھی عام انسان کا دل دہلا دیں گے۔ اس کلپ پر ذرا نظر ڈالیے۔ یہ کوئی زندہ کتا نہیں ہے بلکہ ایک مرا ہوا کتا ہے جس کا کٹا ہوا سر ایک مشین سے کنیکٹ کیا گیا ہے، ہارٹ اور لنگز کی نقل کرنے والی ایک مشین۔ اب یہاں پر اس سین میں دیکھنا، جیسے ہی اس مرے ہوئے کتے کے منہ پر سائنٹسٹ کھٹا سائٹرک ایسڈ لگاتے ہیں وہ فوراً ہی اسے لک کرنے لگ جاتا ہے۔ بٹ یہ اکلوتا ریسپونسونیس کا ثبوت اس مرے ہوئے کتے میں نہیں تھا۔ جب اس کی آنکھوں پر لائٹ ماری جاتی ہے یا آس پاس کسی ہتھوڑے سے ٹیبل کو ناک کیا جاتا ہے تو وہ ان چیزوں پر بھی رسپونڈ کرتا ہے، which just proves کہ وہ کتا صرف بایولوجیکلی ہی زندہ نہیں ہوا بلکہ آس پاس جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں کانشیس بھی تھا۔ لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیسے؟ برین، ہارٹ اور لنگز کے علاوہ زندہ رہنے کے لیے باقی کے آرگنز کا بھی تو پراپر فنکشننگ ضروری ہے۔ تو صرف خون اور آکسیجن کو دے کر ایک مرے ہوئے کتے کو آخر زندہ کیسے کیا گیا؟ اور کیا ایسے کسی ایکسپیریمنٹ کو کبھی انسانوں پر بھی ٹرائی کیا گیا ہے؟ If yes, then ان کے ساتھ آخر ہوا کیا؟ آج ہم انہی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس آن دا ریوائول آف ڈیڈ کے بارے میں ڈیٹیل میں جانیں گے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایسے بہت سے کیسز ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے جسٹ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی کراچی کے ایک علاقے میں کھلے عام ایک لڑکی کا مرڈر ہو گیا تھا۔ کبھی بیچ راستے میں کسی کا قتل کر دیا جاتا ہے اور دیکھنے والے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کریں تو کریں کیا۔ کچھ لوگ تو ایکشن نہیں لیتے یہ سوچ کر کہ کوئی اور لے لے گا، تب تک ویٹ کرتا ہوں، یا پھر کوئی سوچتا ہے کہ ایکشن لے کر کیا ہی فائدہ ہے جب انسان آلریڈی مرنے ہی والا ہے۔ تو ایسے میں ایک انسان کے پاس ایگزیکٹلی کتنا ٹائم ہوتا ہے وکٹم کی جان کو بچانے کے لیے اور اسے موت کے منہ سے نکالنے کے لیے یا موت کے بعد بھی زندہ کر پانے کے لیے؟ بہت ہی جلد آپ کے پاس ان سوالوں کے بھی جواب ہوں گے، اور اس کے ساتھ آج اس ویڈیو میں آپ کچھ بہت ہی ضروری لائف سیونگ سکلز بھی سیکھو گے جو آپ کو ایمرجنسی سچویشنز میں بہت ہی کام آ سکتے ہیں۔ موت کا ڈر یہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے الٹیمیٹ ڈر ہوتا ہے، اور انٹرسٹنگلی انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرنے والے ایکسپیریمنٹس یہ اس سے بھی ڈراؤنے ہوا کرتے تھے جس دور میں سائنسدانوں نے انہیں پرفارم کیا تھا۔ آج کے ہیومن اور اینیمل رائٹس کے زمانے میں انہیں پرفارم کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر آج سے 100 سال پہلے والے دور میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ سائنٹسٹ ان کروئل ایکسپیریمنٹس کو پرفارم کرنے کے بارے میں 2 بار نہیں سوچ رہے تھے؟ یہ سب کی شروعات ہوتی ہے سال 1914 سے 1923 کے زمانے میں، جس ٹائم کو سوویت رشیا یعنی کہ USSR کی ہسٹری کا سب سے بلڈی دور کہا جاتا تھا۔ اتنا کہ اس پورے زمانے کو آج بھی رشیا میں رین آف ڈیتھ کہتے ہیں۔ ان 9 سے 10 سالوں میں سوویت کا ٹائم اتنا برا چل رہا تھا کہ وہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے جو بھی قدم اٹھاتے وہ تباہی کا ہی موڑ لے لیتا تھا اور لاکھوں لوگوں کی جان چلی جاتی تھی۔ سب سے پہلے تو 1914 میں ان کے ویسٹرن بارڈر پر بسے ملک آسٹریا، ہنگری اور سربیا یہ ورلڈ وار 1 کا مرکز بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رشیا بھی اس وار میں گھسیٹا جاتا ہے اور اس کے 2 سے 3 ملین سولجرز مارے جاتے ہیں۔ پر یہاں سے تو سلسلہ بس شروع ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد 1918 سے 1921 کے بیچ وہاں پر ملک بھر میں سول وار شروع ہو جاتا ہے، جس میں میس مائگریشنز ہوتے ہیں، جان لیوا بیماریاں پھیلتی ہیں، اینڈ اگین قریب 8 سے 10 ملین لوگ مارے جاتے ہیں۔ اور اس سب کے بعد جب وارز فائنلی ختم ہوتے ہیں اور ملک میں پیس قائم ہونے ہی لگتا ہے کہ سال 1921 میں اچانک سے ایک دم سے سوکھا پڑ جاتا ہے اور پھر سے کئی ملین لوگ مارے جاتے ہیں۔ آل ان آل کہا جاتا ہے کہ ان سیکوینس آف ایونٹس میں 1914 سے لے کر 1923 کے بیچ لگ بھگ 15 سے 20 ملین رشینز وقت سے پہلے ہی چل بسے۔ اب ان سبھی لاشوں اور ان موتوں کی آخر کوئی بھرپائی کیسے کرے؟ تو ان دنوں جو نئی سوویت سرکار بنی تھی نا، اس نے فوراً ملک میں ایک نیو اکنامک پالیسی لاگو کی جس سے لوگوں کی حالت سدھرنے لگی اور وہ اپنا ٹراما پیچھے چھوڑ کر دھیرے دھیرے اپنی لائف میں موو آن کر پانے لگے، ایکسیپٹ 1 گروپ، سوویت سائنٹسٹس۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد سوویت سائنٹسٹ جیسے ڈیتھ سے obsess ہونے لگ گئے تھے، لائک لٹرلی ارلی 1920 سے ہی جو انہوں نے اپنے بکس، بروشرز، پیمفلیٹس یا ایون آرٹیکلز پبلش کیے تھے ان کے ٹائٹلز ہی آپ ذرا دیکھ لو۔ لائف اینڈ ڈیتھ، واٹ از ڈیتھ؟ ڈیتھ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف ماڈرن سائنس، ایجنگ اینڈ ڈیتھ، دا پرابلمس آف ڈیتھ اینڈ امورٹیلٹی، ڈیتھ اینڈ ریوائول، دا انگما آف ڈیتھ اینڈ سو آن۔ انفیکٹ آپ مانو گے نہیں، 1924 میں ایک رینونڈ پیتھولوجسٹ جارجل شور نے تو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ سائنس میں ایک الگ ہی اسپیشل فیلڈ ہونا چاہیے جو صرف اور صرف ڈیتھ سے ڈیل کرے، اور گریک گاڈ آف ڈیتھ تھیناٹوس کے نام پر انہوں نے سائنٹیفک فیلڈ کا نام بھی سجیسٹ کیا تھا، تھینیٹولوجی۔ یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہو وہ ڈیسپریٹلی موت کو سمجھنا چاہتے تھے،
کہ भाई प्रॉपर मेडिकल टर्म्स में ये डेथ एग्जैक्टली होता क्या है। अब सोवियत साइंसदानों की जानिब से शुरू की गई इस रेस के हिस्सेदार तेजी से दूसरे ममालिक के साइंसदान भी होने लगे, और अब वो सभी सिर्फ थ्योरेटिकल लेवल पर ही नहीं बल्कि मौत को प्रैक्टिकली भी समझना चाहते थे। और इसी दौर में दो साइंटिस्ट ऐसे थे जो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे एक मरे हुए इंसान को जिंदा करने की कोशिश में। पहला नाम था सोवियत साइंटिस्ट सर्गे ब्रूखोनेनको और दूसरा नाम था अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉर्निश। अब इनमें से स्पेसिफिकली रॉबर्ट कॉर्निश को तो आज की तारीख तक लोग मैड साइंटिस्ट करके बुलाते हैं, क्योंकि ये उस टाइम पर एक जायंट सीसा की मदद से मुर्दों को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। सो कॉर्निश आखिर क्या किया करते थे? वेल, एक इंसानी लाश को सीसा जैसे मूव होने वाले इस टीथर बोर्ड से बांधा करते, फिर इसमें वो एड्रेनलिन और हेपरिन जैसे खून को पतला करने वाले केमिकल्स इंजेक्ट करते और फिर टीथर बोर्ड को ऊपर नीचे हिलाकर ग्रेविटी की मदद से खून को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने की कोशिश करते। इसके पीछे उनका आइडिया ये था कि ऑक्सीजन मुंह और नाक के जरिए अंदर आएगा और फिर वो खून में मिलेगा एंड देन वहां से वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने लगेगा, जिससे लाशें जिंदा हो सकती हैं। सो नाउ द $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या वो लाशें जिंदा भी हुई? वेल, एज यू कैन इमेजिन, इनके इस तरीके से एक भी मुर्दा नहीं उठा। लेकिन कॉर्निश के मुताबिक इसमें गलती असल में मुर्दों की ही थी। नो, आई एम सीरियस। कॉर्निश का मानना था कि इन लोगों को मर के बहुत ही टाइम गुजर चुका था और इसीलिए इन पे ये तरीका काम नहीं आया। पर अगर यही एक्सपेरिमेंट फ्रेशली मरे हुए इंसानों पर किया जाए तो ये काम कर सकता है। सो कॉर्निश ने फिर सेम एक्सपेरिमेंट को 5 फ्रेशली मरे हुए कुत्तों पर आजमाया, जिनका नाम रखा गया था लेज़ारस 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। इनमें से पहले 3 तो एज एक्सपेक्टेड टीथर बोर्ड पर ही तितर बितर हो गए, यानी कि मर गए। लेकिन सरप्राइजिंगली आखिरी 2 फिर से जिंदा हो गए, यानी कि कॉर्निश वाज नॉट दैट मैड आफ्टर ऑल। और इसके पीछे का साइंस क्या हो सकता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली आपको आज के मॉडर्न साइंस के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काफी सिली लग रहा होगा। बट क्या कॉर्निश ने अनजाने में ही सही लेकिन डेड बॉडी को रिवाइव करने का कोई कोड क्रैक कर लिया था क्या? वेल, इन सवालों के जवाब जानने के लिए ना हमें यूएसए से यूएसएसआर शिफ्ट होना होगा, क्योंकि वहां पर सोवियत साइंटिस्ट सर्गे ब्रूखोनेनको भी मुर्दों को जिंदा करने के लिए एक्सट्रीम हद तक जा रहे थे। लेकिन अनलाइक कॉर्निश, उनका तरीका आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक था। इतना कि आज के मॉडर्न ओपन हार्ट सर्जरीज में पेशेंट को जिंदा रखने के लिए जिस आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है इन्हें, वो माना जाता है कि इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड है। दरअसल 18 सितंबर 1925 के दिन सर्गे ब्रूखोनेनको ने एक काफी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी दुनिया के सामने लाई। उन्होंने जब रशिया के सभी बड़े बड़े मेडिकल प्रोफेशनल्स का एक कॉन्फ्रेंस जारी था, तब वहां एक ऑटोजेक्टर नाम के डिवाइस को पेश किया जो हमारे हार्ट और लंग्स के फंक्शन को मीमिक कर सकता था। इसमें बेसिकली 2 इलेक्ट्रिक पंप्स लगे होते थे जो रबर ट्यूब्स के जरिए गले में मौजूद अहम नसों से कनेक्ट किए जाते, और दूसरी तरफ ये दोनों पंप्स एक ऑक्सीजनेशन वेसल से कनेक्टेड होते जहां खून में ऑक्सीजन ऐड किया जाता। बेसिकली इस डिवाइस के जरिए ब्रूखोनेनको का आइडिया ये था कि एक पंप मुर्दा जिस्म में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खींचकर ऑक्सीजनेशन वेसल तक भेजेगा और फिर वहां उसमें ऑक्सीजन ऐड होने के बाद दूसरा पंप वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से जिस्म में इंजेक्ट कर देगा और ऐसे एक मरा हुआ ऑर्गेनिज्म वापस से जिंदा हो सकता है। अब मैंने शुरुआत में जो सर कटे कुत्ते का एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया था ना, वो असल में इस चीज का लाइव डेमो था जो ब्रूखोनेनको ने पब्लिकली शो किया था, और ये प्रूफ था कि ब्रूखोनेनको का तरीका काम करता था और वो कॉर्निश से बेहतर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जिन कुत्तों के सिर को रिवाइव किया था वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट तक ही जिंदा रह पाए। सो ब्रूखोनेनको को पता चल गया था कि उन्हें अपने इस टेक्निक को और भी ज्यादा फुल प्रूफ बनाना होगा, और इसीलिए ऐसे में आप जानते हो उनका अगला डिमोन्स्ट्रेशन क्या रहा होगा। वेल, इस बार उन्होंने एक जिंदा कुत्ते को लिया, देन उसके गले की अहम नस को काट कर इसका सारा खून एक्सट्रैक्ट कर लिया ताकि वो कुत्ता मर जाए। फिर करीब 10 मिनट तक उन्होंने वेट किया ताकि कोई भी गुंजाइश ही न रहे कि वो जिंदा है, एंड देन फाइनली मरने के 10 मिनट बाद उन्होंने इस लाश को ऑटोजेक्टर से कनेक्ट करके उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश की। एंड देन जरा फुटेज देखो, ये वही कुत्ता है जिस पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। आप देख सकते हो वो पूरी तरह से रिकवर कर चुका है, एज इफ कि वो कभी मरा ही नहीं था, विच मीन्स उन्होंने एक पेशेंट को लिटरली मार के दोबारा से जिंदा करके बताया। अब ऑब्वियसली
इस सक्सेस के बाद डेफिनेटली आप पूछोगे कि क्या ब्रुखोनेंको ने कभी इसे इंसानों पर ट्राई करके बताया? मैंने एकेडमिक रिकॉर्ड्स में बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे पर्सनली इसका कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं मिला। बट इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि अगर खून और ऑक्सीजन को सही क्वांटिटी में किसी डेड बॉडी में 10 मिनट के टाइम विंडो के अंदर सप्लाई किया जाए तो उसे वापस से जिंदा किया जा सकता है। बट जरा सोचो, आखिर सिर्फ 10 मिनट के लिए ही कुत्ते को मरा हुआ क्यों रखा गया, इससे ज्यादा क्यों नहीं? और सेम चीज आपने मूवीज में भी देखी होगी, जिसमें कई बार डॉक्टर्स कहते हैं ना कि बस 10 मिनट पहले अगर पेशेंट को लाया होता तो जान बच सकती थी। प्लस आपने कई बार ये भी देखा होगा कि कोई अगर मर रहा होता है और ईसीजी मॉनिटर पर ऐसी स्ट्रेट लाइन आने लगती है तो डॉक्टर फौरन एक इंजेक्शन निकाल कर उसे लगा देता है और फिर बाद में शॉक देकर उस विक्टिम को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। सो क्या 10 मिनट ही वो फाइनल लिमिट है जिस अहम घड़ी के गुजर जाने के बाद किसी को भी मौत के बाद वापस से जिंदा नहीं किया जा सकता? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए ना हमें डेथ के प्रोसेस को ही सबसे पहले समझना होगा। डेथ कोई वन पॉइंट इवेंट नहीं होता, बल्कि एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ स्टेजेस होते हैं जिससे बॉडी गुजरती है। भले ही किसी इंसान की कॉन्शियसनेस एक झटके में चली जाए, वो अनकॉन्शियस हो जाए, बट मरते वक्त हर बॉडी इस डेथ के प्रोसेस से गुजरता ही है। तो देखो, जब कोई इंसान मर रहा होता है, स्पेशली अननेचुरल तरीके से, जैसे एक्सीडेंट हो गया, तो बॉडी 4 मेजर स्टेजेस से गुजरती है। पहला है शॉक। एक्सीडेंट हुआ हो, कोई ऊंचाई से गिरा हो, किसी ने गोली मारी हो, या इवन अगर कोई पंखे से लटक कर मरा हो। इन एनी केस वो जो इनिशियल ट्रॉमा होता है ना, अगर वो सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस काज करता है या पंखे से लटकने के केस में ब्लड फ्लो को बुरी तरह रिस्ट्रिक्ट करता है या फिर ऑर्गन डैमेज कर देता है, तो फिर ऐसे में बॉडी इन इंजरीज की वजह से शॉक स्टेट में चली जाती है। इस स्टेट में बॉडी कोशिश करती है किसी भी तरह से हार्ट, लंग्स और ब्रेन, ये 3 वाइटल ऑर्गन्स तक एटलीस्ट कैसे भी करके खून पहुंचाए, और इसीलिए ऐसे टाइम पर विक्टिम का पल्स रेट तेज हो जाता है, बीपी ड्रॉप हो जाता है और हाथ पैर जैसे नॉन वाइटल ऑर्गन्स पेल और ठंडे पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वहां का खून डाइवर्ट कर दिया गया है। अब ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होता है, क्योंकि इस स्टेज में अगर आपने ब्लीडिंग को किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया, लेट्स से एक थिक टॉवल से उस ब्लीडिंग स्पॉट को कवर करके प्रेशर अप्लाई करके, तो आप उस विक्टिम की डेथ को कई घंटों तक डिले कर सकते हो। और इसीलिए अगर आपके सामने किसी एक्सीडेंटल विक्टिम को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी हालत में ब्लड लॉस को पहले रोकने की कोशिश करें। बट लेट्स से बहुत ही ज्यादा जख्म है और विक्टिम का जिस्म एक तरह से छलनी हो चुका है, इसमें हर जगह से खून लीक हो रहा है, तब क्या होगा? वेल, इन दैट केस विक्टिम बढ़ता है सेकंड स्टेज की तरफ, विच इज कॉल्ड हाइपोवोलेमिक शॉक स्टेज। बेसिकली जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो नसों में इतना ब्लड ही नहीं बचता कि वो सफिशिएंट प्रेशर की मदद से ऑर्गन्स तक धकेला जाए, और इसीलिए ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलना बंद होने लगता है। इस सिचुएशन में आप देखोगे विक्टिम पहले तो वीक और कंफ्यूज नजर आने लगता है और फिर सडनली उसकी ब्रीथिंग काफी तेज हो जाती है एंड देन फाइनली वो बेहोश हो जाता है। अब इस स्टेज के बाद ना मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने लेवल पर इंसान को मौत से नहीं बचा सकते, और इसी लेवल पर मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम्स की मौत भी हो जाती है। बट एक्चुअली में इसे काफी हद तक रोका जा सकता है अगर बस एक चीज की जा सके तो, जिसके बारे में हम कुछ ही देर में बात करेंगे। देखो, इस लेवल में एक इंसान सिर्फ हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटी में ही बच सकता है, क्योंकि इसे एक्सटर्नली एक्स्ट्रा ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो पेशेंट की मौत कुछ टाइम के लिए और डिले की जा सकती है और इसे इस क्रिटिकल टाइम से बाहर निकाला जा सकता है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो पेशेंट के सभी ऑर्गन्स के सेल्स ब्लड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से धीरे धीरे मरने लगेंगे, और ऐसे में पेशेंट पहुंच जाएगा मौत के तीसरे स्टेज में, विच इज कॉल्ड क्लिनिकल डेथ। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस से अगर सपोज हार्ट स्टॉप हो गया और ब्रीथिंग भी रुक गई तो पल्स नहीं मिलती है और मॉनिटर भी ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाने लग जाता है, और इसीलिए इस स्टेज को टेक्निकली क्लिनिकल डेथ कहा जाता है, जब हार्ट बीट करना स्टॉप कर चुकी हो। अब जो ब्रुखोनेंको के एक्सपेरिमेंट्स में 10 मिनट के बाद कुत्तों को वापस जिंदा किया जा रहा था ना, वो एक्चुअली में इसी टाइप के डेथ से वापस लाया जा रहा था। इस स्टेज में ज्यादातर केसेस में डॉक्टर्स के पास लगभग 10 मिनट के अराउंड का टाइम होता है विक्टिम के हार्ट बीट को फिर से किक स्टार्ट करने के लिए। बट अगर ऐसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, तो पेशेंट इंटर करता है फाइनल स्टेज ऑफ डेथ में, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ या इवन ब्रेन डेथ। इस स्टेज में क्योंकि सेवरल मिनट्स तक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला, ब्रेन के और दूसरे ऑर्गन्स के सेल्स तेजी से मरने लग जाते हैं और हमारे बॉडी और ऑर्गन्स पर से उसका कंट्रोल छूटने लगता है, और इसीलिए आप देखोगे इस लास्ट स्टेज में विक्टिम की आंखें
एक ही चीज पर फिक्स हो जाती हैं और आंखों के प्यूपल्स डायलेट यानी कि स्प्रेड हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली यही वो फाइनल स्टेज होता है डेथ का, जिसके बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता। ब्रेन के मिलियंस ऑफ सेल्स लिटरली मर चुके हैं, उन्हें वापस कोई भी मेडिकल प्रोसीजर से जिंदा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से एक टूटे हुए कांच के गिलास को उसी सेम स्ट्रक्चर में वापस से फिक्स नहीं किया जा सकता। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्लिनिकल डेथ के बाद पेशेंट को जिंदा करते वक्त पेशेंट जिंदा तो हो जाता है, लेकिन कई हद तक इसके दिमाग के सेल्स मर गए होते हैं और इससे या तो वो पेशेंट पार्शियली कोमा में चला जाता है या फिर सिर्फ एक जिंदा लाश बन जाता है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, उसका सिर्फ हार्ट काम कर रहा है, वो ब्रीथिंग कर रहा है और मे भी दूसरे ऑर्गन्स उसके काम कर रहे हैं, बट वो ब्रेन डेड हो चुका है। उसके ब्रेन के सेल्स लिटरली मर चुके हैं। ना वो कुछ देख सकता है, ना ही कुछ सुन सकता है और ना ही इवन कुछ फील कर सकता है। बिल्कुल जिंदा लाश धड़कते हुए दिल के साथ। जैसे कार्डियक अरेस्ट पेशेंट कैरोल का केस ले लो। कार्डियक अरेस्ट से इनकी हार्ट बीट पूरी तरह से थम गई थी, यानी कि क्लिनिकल डेथ हो चुका था, बट 45 मिनट्स बाद उनको फिर से रिवाइव किया गया, जहां पर 10 मिनट की लिमिट को भी फार एक्सीड करके 45 मिनट्स बाद रिवाइव किया गया। डॉक्टर सैम परनिया, जो न्यूयॉर्क की स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में रिवाइवल रिसर्च के मेन डायरेक्टर हैं, उनके हिसाब से कैरोल कोई इकलौती ऐसी ह्यूमन नहीं है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि कुछ घंटों के बाद भी मरने के बाद रिवाइव हो पाए हैं। बेसिकली मौत के बाद भी जिंदा करने के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है कॉल्ड डिफिब्रिलेशन। इसमें जो इंसान क्लिनिकल डेथ एक्सपीरियंस कर रहा होता है, यानी कि जिसका हार्ट अपनी नेचुरल रिदम को खोकर थम रहा होता है, इसको शॉक देकर जिंदा करने की कोशिश की जाती है। आपने मूवीज में भी ये करते हुए देखा होगा। इसमें बेसिकली एक डिफिब्रिलेटर मशीन होती है जिसके 2 पैड्स पेशेंट के चेस्ट रीजन में एग्जैक्टली इस पोजीशन में टच किए जाते हैं और फिर चार्ज को रिलीज किया जाता है। आइडियली फर्स्ट शॉक में ही पेशेंट का हार्ट रीस्टार्ट होकर नॉर्मल हार्ट बीट के साथ बीट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, बट अगर ऐसा नहीं होता तो 2 और अटेम्प्ट्स किए जाते हैं और एपिनेफ्रिन या वैसोप्रेसन जैसे नसों को कॉन्स्ट्रक्ट करने वाले इंजेक्शंस देकर बीपी को बढ़ाया जाता है ताकि हार्ट के मसल्स को और ज्यादा ऑक्सीजन मिले और वो फिर से नॉर्मल रिदम में किक स्टार्ट हो सके। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर हार्ट थमते ही फौरन पेशेंट को सीपीआर दिया हुआ होगा ना, तो शॉक वाले मेथड से इंसान के जिंदा होने के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। सीपीआर बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें पेशेंट के चेस्ट को दबा कर मैकेनिकली हार्ट से ब्लड पंपिंग करवाया जाता है। आप इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें आपको इसका बेसिक साइंस समझ में आ जाएगा। काफी डिटेल्ड में, काफी इजी तरीके से ये वीडियो आपको बता देगी। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये टेक्निक भी सभी को आना बहुत जरूरी है क्योंकि इमरजेंसीज जैसे कि हार्ट अटैक्स या ड्रोनिंग के केसेस में ये बिल्कुल काम आ सकता है। कैरोल के केस में भी सीपीआर दिया गया था, इसीलिए वो 45 मिनट्स बाद भी जिंदा हो पाई। खैर, अब ये सब बातें तो हमने कर ली, लेकिन इन बातों से हम क्या सीख सकते हैं और इस दुनिया को बेहतर कैसे बना सकते हैं। जैसे आपको पता है, हम इस चैनल में साइंस के जरिए पर्सनल और सोशल एम्पावरमेंट लाना चाहते हैं और ये चीज विदाउट अ डाउट क्लियर करना चाहते हैं कि साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक सोच है, तरक्की की सोच, बेहतर जिंदगी और सोसाइटी का एक चीट कोड है। सो हमारे सामने अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई लड़ाई झगड़े में इंजर्ड हो जाता है, तो आखिर हमें विक्टिम को कितना जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या फिर एम्बुलेंस का वेट करना चाहिए। सो यहाँ पर क्या करना सही होगा? तो इसके लिए ना आपको बहुत ही कम टाइम में डिसीजन लेना होगा कि विक्टिम के पास अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम बचा है। मेडिकल फील्ड में ना एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड ट्राइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉमा डेथ्स। इसमें पेशेंट को कहाँ कहाँ पर इंजरी लगी है उसके बेसिस पर उनके पास कितना टाइम है ये डिसाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी यहाँ पर है इमीडिएट डेथ्स की, यानी कि कुछ सेकंड से ही कुछ मिनटों में इंसान मर सकता है। इसे कैसे पहचाना जाए? लेट्स से अगर एक्सीडेंट के इम्पैक्ट से सेवियर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है या फिर कोई मेजर ब्लड वेसल रप्चर हो चुका है, तो ऐसे केसेस में विक्टिम सिर्फ कुछ मिनट्स तक ही जिंदा रहता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केसेस में देयर इज नो चांस कि पेशेंट हॉस्पिटल तक भी जिंदा पहुंचे। अब ऐसे और भी कुछ केसेस हैं जिसमें इमीडिएट डेथ हो सकता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो मेंशन्ड है। अब सेकंड कैटेगरी है अर्ली डेथ्स की, यानी कि वो विक्टिम्स जो कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों में मर सकते हैं। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके एब्डोमिनल रीजन में यानी कि पेट में इंजरीज हुई हैं, या तो लंग्स में लेट्स से फ्लूइड जमा हो गया है या मॉडरेट ब्लीडिंग हो रही है थ्रू आउट द बॉडी। ऐसे ही कुछ और भी केसेस हैं जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। इन केसेस में विद एडिक्वेट फर्स्ट एड हेल्प एक विक्टिम आराम से कुछ घंटे गुजार सकता है बिफोर डाइंग। अब वो जो कहते हैं ना
एक्सीडेंट के बाद पहला घंटा गोल्डन आवर होता है, वो असल में इसी कैटेगरी के विक्टिम्स के लिए कहा जाता है। खैर, जो थर्ड एंड फाइनल कैटेगरी है वो है लेट डेथ्स। इस तरह के डेथ्स मोस्टली काफ़ी रेयर होते हैं और मोस्टली कई दिन या कभी कभार हफ्तों के बाद भी होते हैं। मेनली अगर इंजरी साइट के पास कोई इन्फेक्शन हो गया या वो अननोटिस रह गया तो आगे जाकर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो पेशेंट की डेथ हो सकती है। एंड फाइनली क्यूरियस माइंड्स, अगर आपके सामने अल्लाह ना करे बट कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके एक्शन लीजिए। वेट मत करिए कि कोई और लेगा। आप ये बात अच्छे से जानते हो कि गोल्डन आवर किसी भी विक्टिम के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको लग रहा है कि एम्बुलेंस को आने में टाइम लगने वाला है और हॉस्पिटल करीब ही है तो आप खुद उन्हें हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में डायरेक्टली भर्ती करा सकते हो। एक मिनट यहाँ पर एक्सट्रीमली कीमती होता है, बिल्कुल किसी इंसान की जान की तरह। विद दैट सेड, थैंक यू इस साइंस के वीडियो को एंड तक देखने के लिए। साइंस की मदद से हम एक बेहतर इंसान और एक बेहतर सोसाइटी बनाना चाहते हैं और ये सिर्फ आप, मैं और हम सभी के ताउन से ही पॉसिबल हो सकता है। याद रहे, साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक नजरिया है दुनिया देखने का, और यही सोच हमें जमीन से आगे खला के राजों को समझने पर भी मजबूर करती है। क्योंकि जब हम खुद को और अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो फिर सवाल यही उठता है, क्या हम खला में कहीं और जिंदगी को तलाश कर सकते हैं? अगर ये सवाल तुम्हें भी हैरान कर रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखो, जहां नासा ने जुपिटर के मून यूरोपा के गहरे पानियों में एलियन लाइफ की खोज की कोशिश की है। यकीन करो, ये सब कुछ सुनकर और देखकर इंसान की सोच और भी एक्सपैंड हो जाती है। क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू चेक इट आउट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।